dear brothers, Sister Bhai Benlo, praise the Lord for this wonderful time God has given us. प्रभु का धन्यवाद है. So, Sister Lisa is on the line. Yes, brother. Okay. So, God has given us every day to remember Him and to thank Him and to praise Him. तो परमेश्वर ने हमें हर दिन दिया है उनको याद करने के लिए, परमेश्वर की धन्यवाद, उनकी प्रशंसा करने के लिए And also to encourage one another. और एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए भी. As God encourages us, we can encourage one another. जैसे परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं. How can we encourage one another? और हम एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? We can encourage one another by exhorting by the word of God. तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं. By song, गीतों के द्वारा, by praise and prayer. प्रार्थना और स्तुतियों के द्वारा. That's how the Holy Spirit moves in each one of our lives. ऐसे ही पवित्र आत्मा हम हर एक के जीवनों के द्वारा गुजरते हैं. In a meeting, one word of one song or one sentence of one song can lift you up. सभा में एक गीत का एक शब्द या एक जो पंक्ति है वो आपको ऊंचा उठा सकता है. Some people come join the meeting only after the song singing. तो कुछ लोग होते हैं जो गीतों के बाद ही सभा में आते हैं. They think that the singing is not very important. वो ऐसे सोचते हैं कि जो गीत होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है. But when the singing is inspired by the Holy Spirit and written godly songs, then many of the songs can touch our heart. जब जो भी गीतें हैं वो पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त होकर लिखी जाती है तो आपके बहुत सारे हृदयों को वो छू सकती है. And when we praise God and thank God, we can be encouraged. और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा देते हैं, तो हम प्रोत्साहित हो जाते हैं. You know, yesterday we saw the example of Melchizedek when he came to bless Abraham. तो कल हमने एक उदाहरण देखा मलकीसेदेक का जब वो आए अब्राहम को आशीष देने के लिए. So when we read that, it is hardly 2 or 3 verses that he spoke. तो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 या 3 वचन है जो वो बोलते हैं. He did not preach. उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया वहां. He said just a prayer and thanksgiving to God. That's all. तो उन्होंने एक प्रार्थना की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उतना ही उन्होंने किया. If you want to look at it carefully, you can look at it at home. What was the message of Melchizedek to Abraham? तो अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से बाद में आप घर पे आप देख लीजिए कि अब्राहम के लिए मलकीसेदेक का जो संदेश क्या था. It was just a praise to God and prayer to God. वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से एक प्रार्थना थी और एक प्रशंसा था. And God sent Melchizedek, and God spoke through Melchizedek to Abraham. तो परमेश्वर ने मलकीसेदेक को भेजा और परमेश्वर ने मलकीसेदेक के द्वारा अब्राहम से बातें की. And the same thanksgiving and prayer which Melchizedek prayed, Abraham also prayed. और जो धन्यवाद और प्रशंसा करते हुए जो प्रार्थना मलकीसेदेक ने किया वैसे ही अब्राहम ने भी किया. And he decided not to be greedy at all, not to run after money. And from that he said, my God will supply all my needs. I don't have to run after money. I don't have to be anxious or tense. Brother, your volume has gone down, I think. And he said when he heard that prayer, God spoke to him, and the same prayer and thanksgiving he gave to God. तो हम देखते हैं जो वचन के द्वारा मलकीसेदेक ने अब्राहम से बात किया था वही धन्यवाद देना और प्रशंसा देना की जो प्रार्थना है वही अब्राहम ने भी किया. And it changed his life. और उसने उसकी वजह से उसका जो जीवन है वो बदल गया. And he never became greedy for money or anything, but he gave glory to God. और फिर वो पैसों के लिए किसी और विषय के लिए कभी भी लालची नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर को उसने महिमा दी. That is the great importance of fellowship. तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है संगति करने का. The spiritual fellowship encourages us so much. जो आत्मिक संगति है वो हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं. We see in Hebrews chapter 10, हम देखेंगे इब्रानियों की किताब 10 अध्याय में verse 23, 24 and 25.
23, 24 और 25 वचन। Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stimulate one another to love and to good deeds, not forsaking our assembly together, as is the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day approaching. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। So we see that we have to hold fast the confession, we have to open our mouth and give thanks to God. तो हम यहाँ देखते हैं, तो हमारे जो अंगीकार है उसको हमें दृढ़ता से पकड़ना है और अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। You and I have such a glorious hope, तो हमारे पास इतनी बड़ी महिमा की एक आशा है, a great calling. एक बहुत बड़ी एक बुलावट है। That is why, as much as possible, we have to open our mouths and give thanks to God. और जितना हो सकता है उतना अपने मुंह खोलकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए And praise God और परमेश्वर को स्तुति देना चाहिए। and say words of faith that yes, surely God has called me and God will complete this work in my life. और हमें ये बात कहे के अंगीकार करना है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो जरूर परमेश्वर अपनी जो काम है मेरे जीवन में वो पूरा करेंगे। And with this, when you do that, you will be encouraged by the Lord. ऐसे ही जैसे आप करते जाओगे तो आप परमेश्वर के द्वारा प्रोत्साहित किए जाओगे And you will get strength to go on in the further in the Lord. और आपको एक सामर्थ्य मिलेगा कि आप प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। And not only you, all the brothers and sisters who are hearing that, they also will be strengthened. सिर्फ आप ही नहीं, परंतु जो भाई बहन आपको सुन रहे हैं वो भी सामर्थ को पाएंगे। Everybody will be happy to do some good in their life, that God will do some more good in their life. और सब लोग बहुत खुशी के साथ कुछ अच्छा अपने जीवन में करने के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे और परमेश्वर उनके जीवन में भलाई के काम करेंगे भी। You know, because every day we tend to get very discouraged. क्योंकि हम जानते हैं प्रतिदिन हम बहुत निराशा में पड़ सकते हैं। And if we get discouraged, we'll do only bad things. और जब हम निराश होते हैं तो सिर्फ बुरे काम करते हैं। Start grumbling and murmuring. हम कुड़कुड़ाई करना, बड़बड़ करना शुरू करते हैं। Start finding fault with everybody. दूसरों के साथ दूसरों का दोष निकालना शुरू करते हैं। And more sin comes. और बहुत ज्यादा से ज्यादा पाप आते जाता है। And then we feel like giving up. और फिर हम हियाव छोड़ देते हैं। But when we hear the word of God, then we confess our sins and ask God forgiveness, and we trust God and go ahead in God. और जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो परमेश्वर के वचनों को सुनकर हम पश्चाताप करते हैं, हमारे पापों का अंगीकार कर कर छोड़कर हम प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं। Verse 24, that we must stimulate one another. तो 24 वचन में लिखा है कि हमें एक दूसरे को उकसाना चाहिए। We should be the source, each one, whatever is you're a brother, or a sister, or a young person, or a child, we can always encourage, stimulate one another. That means just give a nice push to one another that we will run fast. तो आप कोई भी होने दो, आप एक बच्चा होने दो, एक भाई बहन या जवान भाई बहन कोई भी होने दो, आप एक दूसरे को उत्साह सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है कि थोड़ा सा उनको उकसाना है ताकि वो आगे की ओर बढ़ता जाए। I heard of a incident when there are two brothers who had gone for a meeting, and the preacher had given a call to come forward for those who wanted to give their lives to the Lord. तो मैंने एक बात सुनी थी कि दो भाई लोग जो है एक सभा में जाते हैं और वहां पे जो प्रचारक होते हैं वो बुलाकर कहते हैं कि जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं वो आगे आ जाए। So what happened? Of the two brothers, one brother, the elder brother's name was Andrew. तो दो दो भाइयों में से एक जो बड़ा भाई था उनका नाम था एंड्रू। So he was around 15 or 16 years old. तो वो 15 या 16 साल के करीब होंगे। So the preacher said, those who are between 14 to 16, please come forward. तो प्रचारक ने कहा कि जो 14 और 16 साल के बीच में है वो आगे आए। His younger brother was only 13 years old. उनका जो छोटा भाई था वो सिर्फ 13 साल का था। And Andrew wanted to go forward, but somehow he could not. He was just sitting over there, and as he was sitting, he wanted to go, but his legs were not moving, his hand was not moving.
परंतु जो ये बड़ा भाई था वो बैठा हुआ था, उसको जाने की इच्छा तो थी परंतु वो जा नहीं पा रहा था, उसके हाथ और पैर नहीं चल रहे थे, वहाँ बैठा था वो। His younger brother saw him and just gave him a little push. तो उसके छोटे भाई ने उसको देखा और छोटा-सा उसको धक्का दिया आगे की ओर। Suddenly he got up and went forward and he gave his life to the Lord and he cried and asked God forgiveness for his sins. तुरंत वो उठ के खड़ा हो जाता है, आगे की ओर चला जाता है, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा कर कर अपने पापों को कबूल कर देता है और वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में वो सौंपता है वहाँ। All of us are facing lot of pressure from the devil, from our own self, and then we many times there is a lot of discouraging thoughts in our mind. But the Holy Spirit and brothers and sisters, we can give each other a small little push. तो हम देखते हैं कि हम में से कई लोग जो है शैतान के द्वारा दबाव में आ जाते हैं, बहुत सारी निराशाओं के द्वारा दबाव में आ जाते हैं, परंतु जब कोई भाई-बहनों के द्वारा हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा एक धक्का मिलता है, तो उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। So the Holy Spirit is always, whenever the Holy Spirit is there, you'll always be encouraged. और जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा होते हैं, तो हम हमेशा प्रोत्साहित हो सकते हैं। Be encouraged to follow Jesus more wholeheartedly. और फिर आप उत्साह के साथ प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा कर सकते हैं पूरे मन से। There are many Christian churches where people go, they don't get any encouragement at all. तो बहुत सारे मसीही कलीसिया हैं जहाँ पे लोग जाते तो हैं परंतु बिल्कुल भी प्रोत्साहन उन्हें नहीं मिलता वहाँ। They just go to meet each other, say hello and how are you, and then get all. And God is not moving inside because the people there are not faithful. तो वो सिर्फ वहाँ जाते हैं, सबको कहते हैं कि कैसे है, क्या है, सबसे मिलते-जुलते हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा वहाँ नहीं घूम पाता है क्योंकि वो परमेश्वर को विश्वास योग्यता से वहाँ वो नहीं रहते इसलिए। When God is there, He will convict you about your sin, and you will repent from your sin, and then you will receive the Holy Spirit. अगर परमेश्वर वहाँ होंगे तो परमेश्वर आपको आपके अपराधों का एहसास दिलाएँगे, फिर आप अपने मन को फिराओगे, उस पापों से बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपको बचाएँगे, उस उद्धार को आपको देंगे उस जगह। He will make a change in you. परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव लाएँगे। There was a brother in our church who used to not be in our church, he used to go to Pune in some charismatic church, and he said, I could sing and pray, worship Brother, and your pray. volume has again gone low. This is one call is coming. I just block it. Okay. Hello. Hi. Can you hear me now? Yes, yes. Uh, there was a brother in the church where he was going to a charismatic church, and he could clap his hands and praise the Lord and do all these things he was doing there, but he was living in sin. तो एक भाई थे कलीसिया में जो करिश्माटिक कलीसिया में जाते थे, वो परमेश्वर की स्तुति आराधना वगैरह करके हाथ ताली बजा के प्रशंसा वगैरह सब कुछ तो करते थे और बैठे हुए, परंतु वो पाप नहीं जी रहे थे। But when he came to CFC, परंतु जब वो सीएफसी में आए, he said he suddenly become so convicted about his sin, he could not praise the Lord. तो उन्होंने कहा कि तुरंत उनको उनके अपराधों का एहसास ऐसे हुआ कि वो परमेश्वर की स्तुति ही नहीं कर पाए। He began to get convicted and began to feel very guilty. और उनको बहुत उनका अपराध का एहसास हुआ, उनको बहुत पछतावा होने लगा उस विषय का। The Holy Spirit says that you have to change your ways. Don't continue in your sin. पवित्र आत्मा कहता है कि आपको आपके मार्गों को बदलना है, इस पाप में ही लगातार बने नहीं रहो। See, God doesn't hates our sin. Jesus came to die for your sin and my sin. तो यीशु मसीह आए हैं हमारे और आपके पापों के लिए मरने के लिए। If you're continuing in sin, the Holy Spirit will convict you. अगर आप पाप में ही लगातार बढ़ते जाओगे तो पवित्र आत्मा आपको उसका अपराध का एहसास दिलाएगा। You'll feel very uncomfortable. आपको बहुत ही आरामदायक महसूस नहीं होगा। All your secret sins will be exposed. आपके जितने भी रहस्यमय पाप है सबका खुलासा हो जाएगा। So either you change and listen to God, or you just leave the meeting. या तो फिर आप सुनकर परमेश्वर की बातों को मान लो या तो फिर सभा छोड़ के चले जाओ। There was an auntie of mine. मेरी एक आंटी थी, She said, I don't want to go for all these meetings, good meetings, because whenever I hear these things, I get very much convicted. उन्होंने कहा कि मैं अच्छी सभाओं में जाना नहीं चाहती क्योंकि जब भी उस वचनों को मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही दोष अपने आप को मैं दोष लगाने की जैसा एहसास मुझे होता है। The best thing is to do is not go for the meeting. तो सबसे बेहतर काम वो ये करती थी कि वो सभा में जाती थी ही नहीं। Better to do something else like eating and drinking and listening to music. तो वो क्या करती थी, उसके अलावा खाना पीना या कोई संगीत वगैरह सुनती थी। And she was very rich. और बहुत ही धनवान थी वो।
This is how the devil deceives a lot of people, and the people will end up in hell. तो ऐसे ही शैतान बहुत सारे लोगों को भरमा देता है, वो लोग नरक में पहुंच जाते हैं फिर। And the devil is always active to work in your life and my life. और शैतान जो है हमेशा क्रियात्मक रहता है आपकी और मेरे जीवन में काम करने के लिए। So when we hear the word of God, we have to listen to it, repent it, and obey God. तो इसलिए हमें जब भी परमेश्वर के वचन सुनते हैं तो हमें अपने आप पश्चाताप करना है और परमेश्वर की वाणी की और अपनी वाणी जो भी है उसे सुनना है और उसको मानना है। We see in the book of Romans, chapter 6, रोमियो 6 अध्याय में देखेंगे verse 19. उसका 19 वचन। I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। Yes. You know, before we came to Christ, we were slaves of sin. तो हमें पता है प्रभु में आने से पहले हम पाप के गुलाम थे। We did what we liked. हमने वही किया जो हमें अच्छा लगता हो। That is why I felt we did every type of sin. इसलिए हमने हर प्रकार के पाप किए। Sexual sin. लैंगिक पाप। We began to doubt God and we were full of anxiety. हम पूरे चिंता में भरे रहकर परमेश्वर की ओर संदेह करने लगे। We began to hate people हम लोगों से नफरत करने लगे and began to fight with them and kept enmities in our heart. और उनके साथ लड़कर अपने हृदय में उनकी ओर शत्रुता पाली। We had such a love for money हमारे अंदर बहुत पैसों का प्रेम था and we could not listen to anybody. We think that we are great and we would not listen to anybody, would not submit to anybody. और हम किसी की सुनना नहीं चाहते थे। हम ये सोचते थे कि हम महान हैं, हम किसी के अधीनता में नहीं आते थे। That is why we became slaves of sin. इसलिए हम पाप के गुलाम बन गए। And that's why we are under the control of the devil. ऐसे ही हम शैतान के नियंत्रण के अधीन में आ गए। And the result of it was that we didn't have love and peace and joy. We didn't have fellowship with God. उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे अंदर शांति, आनंद, प्रेम नहीं था, परमेश्वर के साथ एक संगति नहीं था। And we are going to go to hell. और हम नरक जाने वाले थे। But God is so good. He showed us the truth and we accepted the truth and repented from our sin. तो परमेश्वर इतने भले हैं कि परमेश्वर ने हमें सच्चाई दिखाया और सच्चाई को हमने जान लिया और हमने पश्चाताप किया और उस सच्चाई को मान लिया। And now what we do with all our members, what decisions we do is to please the Lord. तो हमारे सारे अंगों के साथ अभी हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को खुश करना है। We have read the word of God and obey the word of God. हमें परमेश्वर की वचनों को पढ़ना है, उसकी बातों को मानना है। When the word of God says to love your enemies, love our enemies. अगर परमेश्वर का वचन यूं कहे कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखें, तो हमें शत्रुओं से प्रेम रखना है। Go and ask forgiveness from all your neighbors. जितने भी आपके पड़ोसी हैं, उनसे जाकर क्षमा मांगिए। Forgiveness from your relatives. आपके रिश्तेदारों से क्षमा मांगिए। Stop doing all sexually evil, impure things. जितने भी लैंगिक पाप है उसे करना बंद कर दीजिए। All pornography should be stopped. जितने भी अश्लील चित्र आप देखते थे वो सब कुछ बंद होना चाहिए। And stop being proud, be humble and say sorry and listen to other people. और घमंडी बनना बंद कर दीजिए, नम्र कीजिए अपने आप को, दूसरे लोगों की बातों को सुनने लगिए। Honor your parents. अपने माता-पिता का आदर कीजिए। This is how the Holy Spirit will lead us. ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। And then we become slaves of righteousness. फिर हम क्या बन जाएंगे? धर्म के दास। That means we'll always be slave, or Holy Spirit tells us to do always the right things. इसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा हमेशा हमसे सही चीजों को करने के लिए कहते हैं। Whenever we do the wrong things, Holy Spirit will convict us. और जब भी हम कोई गलत काम करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अपराध का एहसास दिलाएगा। This is how Jesus lived. ऐसे ही यीशु जिए। And even after becoming believers, we can do wrong things. और विश्वासी होने के बाद भी हम गलत काम कर सकते हैं। If we ignore the Holy Spirit, we will do our own will. अगर हम पवित्र आत्मा को अनदेखा कर देंगे तो हम अपनी खुद की इच्छा को करेंगे। We can keep anger in our heart. हम अपने हृदय में गुस्सा रख सकते हैं।
We can keep all lustful thoughts in our mind. हमारे मन में बहुत सारी लालसाओं की चिंता रख सकते हैं, Instead of hating them, we start loving them. तो उनको घृणा करने की बजाय हम उनसे प्रेम करने लगेंगे Again, we will fall into sin और फिर से हम पाप में ही गिरेंगे and we'll under the power of the devil again. और फिर से हम शैतान के अधीन के नियंत्रण में आ जाएंगे। Our tongues will be used by the devil हमारी जो जुबान है वो शैतान उपयोग करेगा उसका, for grumbling and complaining and blaming other people. कुड़कुड़ाने के लिए, बड़बड़ करने के लिए, दूसरे लोगों पर दोष लगाने के लिए। After praising and thanking God and worshiping God, people are busy, believers are busy grumbling and complaining and blaming. तो परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद करने के बजाय विश्वासी लोग दूसरे लोगों की कुड़कुड़ाई, बड़बड़ और दूसरे लोगों की दोष निकालने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। Either we are slave of God or slave of our own flesh, या तो फिर हम परमेश्वर के दास हैं, या तो फिर अपने खुद के शरीर के दास हैं, or slaves of sin. या तो फिर पाप के दास हैं। Verse 22 says, but now having freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit resulting in sanctification and the outcome eternal life. 22 वचन उसका, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। So as we start obeying God every day of our life, not listening to our own the sinful desires, then we become holy, and then the result we get the permanent nature of God in our life. तो हम देखते हैं अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, तो क्या होता है कि हम पवित्र बन जाते हैं और परमेश्वर का जो जीवन है वो हमें मिल जाता है, उनका जो स्वभाव मिल जाता है। There are so many believers who are falling into sin. बहुत सारे विश्वासी हैं जो पाप में गिरते जा रहे हैं। So many preachers are being falling into immoralities. बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो व्यभिचार में गिर रहे हैं। So many people are running after money, बहुत सारे लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। and so many people have become so proud, बहुत सारे लोग बहुत घमंडी हो चुके हैं, and because of that they are far away from God. जिसकी वजह से वो परमेश्वर से बहुत ही दूर हैं। And how did it happen? और ये कैसे हुआ है? Because every day in the small decisions of life they were listening to sin and not listening to the Holy Spirit. क्योंकि उनके प्रतिदिन के निर्णयों में वो अपने पाप की सुन रहे थे, शरीर की सुन रहे थे, ना कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर की। Somebody said one lie, you cannot tell only one lie. तो किसी ने कहा कि आप सिर्फ एक झूठ नहीं बोल सकते, You tell more and more lies one after another. तो आप लगातार झूठ बोलते हो, एक के पीछे एक, Then you become a liar. फिर आप एक झूठे बन जाते हो, It becomes a nature. वो आपका स्वभाव बन जाता है। But if we always speak the truth, all lies will go away from our life. अगर हम हमेशा सच बोलेंगे तो जितने भी झूठ है हमारे जीवन के सब कुछ दूर हो जाएंगे। Because we become like Jesus, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. क्योंकि हम यीशु मसीह के समान बन जाएंगे, जिसने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। And our nature will be changed और from speaking lies to speaking only truth. तो हमारा जो स्वभाव है वो बदल जाएगा, जो हम झूठ बोलते थे अभी सिर्फ हम सच ही बोलेंगे। If you have told one lie, the Holy Spirit will tell you this is a lie, and because of that one lie, you can go to hell. तो अगर आप कोई झूठ बोलते हो तो पवित्र आत्मा आपको कहेगा कि ये एक झूठ की वजह से आप जो है नरक में जा सकते हो। If you cheated other people of money and not returned other people's money back, you're a thief. अगर आपने किसी को धोखा दिया है, दूसरे लोगों का पैसा आपने लौटाया नहीं है, तो आप चोर हो गए। You have to return the money as early as possible. आपको उस पैसे को लौटाना है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। Doesn't matter if you have to miss a meal, but try to return all the money which you have taken from other people. कोई बात नहीं कि आपको एक टाइम का खाना छोड़ना पड़े, परंतु जो दूसरे लोगों का जो पैसा है वो वापस कर दीजिए जितना जल्दी हो सके उतना। God will tell you to turn away from your bad friends. तो परमेश्वर आपसे कहेंगे कि जितने आपके बुरे मित्र हैं उनसे आप दूर रहने के लिए। God will tell you to have new friends in the church. परमेश्वर आपसे कहेंगे कि नए मित्र बनाओ अपनी कलीसिया में। Because if you go to the old friends, you'll go back to your own sins. क्योंकि अगर आपके पुराने मित्रों के पास आप जाओगे तो आप अपने पुराने पापों में भी चले जाओगे। Some people say, I will have my old friends and relatives and also have God and God's children. तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं अपने पुराने मित्र और रिश्तेदारों के साथ भी रहूंगा, उसके साथ परमेश्वर और परमेश्वर की संतानों के साथ भी रहूंगा। They want to have a balance. तो उनको एक बैलेंस जीवन चाहिए रहता है। But the result is Jesus said you cannot love God and you cannot love earthly things. तो परमेश्वर कहते हैं कि उसका परिणाम ये है कि आप परमेश्वर और संसार की चीजों के ऊपर एक साथ प्रेम नहीं रख सकते।
then the result will be that you'll be loving the worldly things and you'll be hating God. तो उसका परिणाम ये होगा कि आप संसार की चीजों के ऊपर प्रेम रखने लगोगे और परमेश्वर से घृणा रखने लग जाओगे You'll be hating God's people and the people who talk the truth. और आप परमेश्वर के जन से घृणा रखने लगोगे और जो सच बोलते हैं उन लोगों से घृणा रखने लगोगे The children of Israel went after idolatry. They followed their own lusts and desires, and they wanted to eat and drink and all immoral things. तो हम देखते हैं इज़राइल जन जो है मूर्ति पूजा में चले गए, बहुत सारे अश्लील और लालसाओं के पीछे चले गए, सारे जो व्यभिचार के कामों में वो पड़ गए। But when God sent prophet after prophet to warn them and told them to change their ways, और फिर परमेश्वर ने नबियों के पीछे नबियाँ भेजी ताकि वो अपने जीवन में पश्चाताप करें, उनके मार्गों में से वो मुड़कर आ जाएं। but the people did not like it. God's people did not like it at all. परंतु परमेश्वर के जन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो बात। They said, you are being very hard on us. तो उन्होंने कहा कि आप हम पर बहुत ही कठोर रीति से पेश आ रहे हो। God has sent them to repent. But the repentance is the best thing that can happen to us. तो परमेश्वर ने उनको भेजा था ताकि उनको उनके अंदर एक पश्चाताप हो, क्योंकि पश्चाताप ऐसी चीज है जो बहुत बहुत ही बेहतर है हमारे जीवन के लिए। When we repent, God fills us with the Holy Spirit. और जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं। If we have not received the Holy Spirit, it's because we have not repented. अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया नहीं है, वो इस वजह से है कि आपने पश्चाताप नहीं किया है। You have not changed your lifestyle. आपने अपनी जीवन शैली को बदला नहीं है। You're still watching the same old bad thing. आप अभी भी पुराने जितने भी गंदे बात है उसी को देख रहे हो अभी भी। And how will God fill you with the Holy Spirit? और फिर कैसे परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देंगे? You can say that many other believers also are doing the same thing. तो आप कह सकते हो कि बाकी जितने भी विश्वासी हैं वो भी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। See, God is not partial to anybody. देखो परमेश्वर जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। Children of Israel came from Egypt to was going to the promised land. तो इज़राइल जन जो थे मिस्र में से वादा किए देश की ओर जा रहे थे। But only 2 of them could enter the promised land. परंतु उनमें से सिर्फ 2 ही लोग उस वादा किए देश पर पैर रख पाए। The remaining all grumbled and murmured and were doing all sort of idolatry, and they did what they liked. और बाकी जितने भी थे वो कुड़कुड़ाई कर रहे थे, बड़बड़ कर रहे थे, सब मूर्ति पूजा कर रहे थे और जो उनको पसंद था वही करते जा रहे थे। God got fed up of them. परमेश्वर उनसे बहुत ही ऊब गए। He waited and waited and waited, and he told Moses and all the others to warn them, but they just took everything very lightly. उन्होंने परमेश्वर ने उनके लिए बहुत इंतजार किया और मूसा को कहा कि उनको चेतावनी देने के लिए, बहुत सारे लोगों को कहा कि उनको चेतावनी देने के लिए, परंतु उनका मनफिराव कभी भी नहीं हुआ। Even after becoming a believer and you live in sin, then if you die in that, you will go straight to hell. अगर विश्वासी होने के बाद भी आप पाप में जीते रहोगे, आप मर जाते हो तो सीधा आप नरक में ही जाओगे। First of all, we have to see that our lives are cleansed. पहली बात हमें ये देखना है कि क्या हमारा जीवन शुद्ध है कि नहीं। And we have to keep our lives clean always. और हमारे जीवन को हमेशा हमें शुद्ध ही रखना है। Bible says if you got anger in your heart, immediately set it right. परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके हृदय में कोई गुस्सा है तो जल्दी से उसे सही कर दीजिए। Before you go to sleep, settle all the matters. सोने जाने से पहले उसको सही कर दीजिए सारे मामलों को। Because Jesus said, if you're angry, you can the danger of you can go to hell. If you read Matthew 5, 6, 7. तो मत्ती 5, 6, 7 में पढ़ोगे तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि आप गुस्सा अपने हृदय में रखोगे तो आप नरक में जा सकते हो उसकी वजह से। Verse 23 says the wages of sin is death. 23 वचन में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। What is the meaning of death? मृत्यु का अर्थ क्या है? Separation from God. परमेश्वर से अलग किया जाना। For example, if you die just now, उदाहरण के तौर पे अभी आप मर जाते हो, we cannot attend the meeting. हमें सभा में नहीं भागी हो सकते। We will be lying down on the floor. हम इस जमीन पर लेटे हुए होंगे। You will be separated from your relatives and your friends. आपके मित्र, आपके रिश्तेदारों से आप अलग किए जाओगे। And if you have spiritually die, then you'll be separated from God. अगर आप आत्मिक मरण पाते हो तो आप परमेश्वर से अलग हो जाते हो। And if you die like that, you will forever go to hell. अगर ऐसे ही आप मर जाते हो तो आप अनंत काल के लिए नरक में चले जाओगे। Nobody can pray for you कोई भी आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता after you die. आपके मरने के बाद। The Roman Catholic says that you go to purgatory. तो रोमन कैथलिक कहते हैं कि आप जो है परगटरी में जाएंगे। That is a place between heaven and hell. तो वो स्वर्ग और नरक के बीच की एक जगह है। It's a very false doctrine. तो बहुत ही झूठा एक सिद्धांत है वो।
And they say that after all the people pray for him, then afterwards they can go to heaven. तो वो लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद वो स्वर्ग में चले जाते हैं। But the Bible says today is the day of salvation. परंतु बाइबल कहता है कि आज का दिन जो है उद्धार का दिन है। If you confess your sins and turn back today, you'll be completely forgiven. अगर आप अपने पापों को अंगीकार कर कर आज आप मुड़ जाते हो तो आपको आज पूरी तरीके से क्षमा किया जाएगा। Decide in your life not to go back to your old friends again. तो आपके जीवन में आप कहिए कि अपने पुराने मित्रों के पास हमें वापस नहीं लौटना है। Stop watching all the bad things on your mobile and television. आपके मोबाइल में और टीवी में जो भी गलत चीजें हैं उसे देखना बंद कर दीजिए। Have control over your food items and don't overeat. आपके जो खाने की बातों के ऊपर नियंत्रण रखिए, जरूरत से ज्यादा मत खाइए। If you told a lie, go and tell that person, I told a lie. अगर आपने कोई झूठ कहा है तो उस व्यक्ति को जाकर ये कहिए कि मैंने एक झूठ कहा है। And if you have dishonored something and so something badly, just go and apologize. अगर आपने आदर नहीं देकर कुछ गलत बात कह दी है तो जाकर उनसे क्षमा मांगिए। And you have not taken other people's money and all, go and return it as soon as possible. और आपने किसी का पैसा कुछ लिया है तो जितना जल्दी हो सके उसको वापस लौटा दीजिए। Otherwise, you will not get eternal life. You will not get a place in heaven. नहीं तो क्या होगा, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग में एक जगह नहीं मिलेगा। If we repent, we get eternal life. जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। The Holy Spirit comes to our life and gives us love, joy, and peace, and real happiness in our life. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है और हमें शांति, आनंद, प्रेम और बहुत ही खुशी से हमारे जीवन को उभरता है, Every day will be like heaven upon our life तो प्रतिदिन हमारे जीवन के ऊपर स्वर्ग का अनुभव होता है। because we have said no to ourselves and said yes to God. क्योंकि हमने स्वयं के लिए ना कहा है और परमेश्वर के लिए हाँ कहा है। Don't be a disobedient child of God. परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले एक बच्चे मत बनो। So many churches are filled with such a lot of disobedient believers. तो बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे आज्ञा ना मानने वाले विश्वासियों से भरे हुए हैं। They don't want to listen to anybody. वो किसी की सुनना नहीं चाहते। They want to do what they like. उनको जो अच्छा लगता है वही वो करते हैं। But the Holy Spirit warns them, please stop doing what you like and listen to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा उनको चेतावनी देते हैं कि अपनी जो इच्छा है उसको करना छोड़ दीजिए और पवित्र आत्मा की सुनिए। And that will cause pain. और वो हमें दर्द देता है, So we have to mourn. तो हमें दुख उठाना होता है उसमें। Jesus said, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. तो यीशु मसीह ने कहा कि जो दुखी हैं वो धन्य है क्योंकि उनको आश्वास मिलेगा। If we live in sin, अगर आप पाप में जियोगे, in James it says, book of James, याकूब की पत्री में लिखा है, James chapter 4 verse 8. याकूब 4 उसका 8 वचन, Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your heart, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। To whom is the apostle James speaking? तो प्रेरित याकूब किससे बात कर रहे हैं? Speaking to believers. वो विश्वासियों से बात कर रहे हैं। Because many of these believers are backslid and they're sitting in the church. क्योंकि बहुत जो विश्वासी हैं वो पीछे हट गए हैं, फिर भी कलीसिया में बैठे हैं। God wants us to purify our hearts. तो परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। Because if you don't purify our heart, you will not see the Lord. क्योंकि हम अपने हृदय को पवित्र नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। Come to CFC, you can come to all the conferences, but you'll never see the Lord. आप CFC में आ सकते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में भी आ सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। The Lord will say, I don't know you. और परमेश्वर कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। You went on practicing your sin, you never listened to me. आप अपने पापों का अभ्यास कर रहे थे, आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। You never had fellowship with me, you are double-minded. तुम मेरे साथ कभी भी संगति में नहीं रहे, तुम दो मन वाले हो। You wanted the world and you wanted God also. तुम्हें संसार भी चाहिए था और परमेश्वर भी चाहिए था। Because of that, I did not accept you, so you went into the world. उसकी वजह से मैंने तुम्हारा अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तुम संसार में चले गए। And you lived like a hypocrite. और आप एक पाखंडी के समान अपने जीवन को तुमने बिताया। There are so many people who are living like hypocrites as preachers. तो बहुत सारे लोग हैं प्रचारों के बीच में भी पाखंडियों के समान एक जीवन जीते हैं। They want to preach, they want to sing, they want to do all the outward things, but inside they are practicing all sin. वो प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ तो करते हैं, परंतु अंदर वो पाप का अभ्यास करते जाते हैं।
But the Lord wants us to cleanse ourselves. The Lord wants to give us the Holy Spirit so He can hate our sin. तो परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहते हैं, वो हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं ताकि इस पापों से हम घृणा रख सकें। Just as we hate something very bad, we don't like certain things. We don't like snakes. We don't like rats. We hate it. तो हमें कुछ चीजें जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि सांप है, जो चूहे हैं, बिल्कुल हम उनसे नफरत करते हैं। Earlier we used to worship it and give it a lot of food, but now we have to hate it and kill it. पहले हम उनकी आराधना करके उनको बहुत ही खाना वगैरह देते थे, परंतु हमें उनसे अभी नफरत करना है, उनको मार देना है। Because of that we suffered a lot. क्योंकि उसकी वजह से हमने बहुत क्लेश उठाए हैं। And when God shows our sin, we must repent. और जब हमें परमेश्वर हमें हमारे पापों को दिखाते हैं तो हमें पश्चाताप करना है। We must not be casual. तो हमें एक लघु तरीके से उसे नहीं लेना है। Verse 9 says, "Be miserable and mourn and weep." 9वां वचन कहता है, दुखी हो जाओ और श्लोक करो और रो। Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। See, a lot of believers like to make a lot of good music and clap hands, but inside they're living in sin. बहुत सारे जो विश्वासी हैं बहुत अच्छे संगीत बनाने में, ताली वगैरह बजाने में बहुत ही उत्सुक रहते हैं, परंतु एक पाप का जीवन वो बिताते हैं अंदरूनी। There are many music leaders, so-called music leaders, song leaders, who sing outside very nicely, but they're living in sin. बहुत सारे जो गीत गाने वाले जो बाहरी रूप से बहुत ही अच्छे संगीत के साथ गीत गाते हैं, परंतु पाप का एक जीवन अंदर से वो बिताते हैं। Everybody thinks they're very holy, but they're full of sin. बस बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि बहुत ही पवित्र है वो लोग, परंतु वो बहुत पाप से भरे हुए हैं। There was a brother who told us there was a sister who was standing on the stage and singing so nicely. तो एक भाई ने कहा कि एक सिस्टर थी जो स्टेज पर खड़ी होकर बहुत ही अच्छे से गीत गा रही थी। And everybody was so happy because she was leading the singing very well. ये बहुत सारे लोग उनसे खुश थे क्योंकि वो जो गीत का जो भी है उसकी अगुवाई बहुत अच्छे से वो कर रही थी बहन। But afterwards, they came to know that she was living in sin. She was the immoral life. फिर बाद में सभी को ये पता चला कि वो एक पाप का जीवन बिता रही थी, एक व्यभिचार का जीवन बिता रही थी। Just see what a hypocrite a person who was singing so nicely and living an immoral life. देखिए कितने पाखंडी एक व्यक्ति है जो इतने अच्छे से गीत तो गा रही थी परंतु एक व्यभिचार का जीवन जी रही थी। God is not interested in our singing and our sharing, but He wants to interested in our repentance. परंतु परमेश्वर हमारी कोई गीतों में या हमारे वचन बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। परमेश्वर हमारे जो अंतर की जीवन है उसमें पश्चाताप के जीवन में दिलचस्पी रखते हैं। That is why it's written, the Apostle James says, "Be miserable, mourn and weep." तो इसलिए प्रेरित याकूब यहाँ लिखते हैं, दुखी हो जाओ और शोक मनाओ। And all your empty laughter and empty joy should become sad. और तुम्हारी जितनी भी हंसी शोक और तुम्हारा आनंद जो है वो उदासी में बदल जाए। Whenever we mourn over our sin, God can encourage us. और जब भी हम अपने जितने भी पाप है उसके ऊपर शोक मनाएंगे तो परमेश्वर हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं। Ecclesiastes says it's better to go to a house of mourning than to a house of feasting. जैसे वचन में लिखा हुआ है कि बेहतर है कि हम रोने वाले की जगह पे जाए, पर्व मनाने वालों की जगह से बढ़कर। That is better to go to a house where a person has died. तो उसका अर्थ ये है कि अच्छा होता है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति मर जाता है उनके घर में जाना बेहतर है। Because then we will be sad and we will think one day even I have to die. क्योंकि वहां पर क्या होगा, हम बहुत ही उदास होंगे और हम ये सोचेंगे कि एक दिन मुझे भी मरना है। But instead of going for birthday parties and wedding parties, उसके बजाय कि हम कोई बर्थडे पार्टी या तो फिर कोई विवाह की पार्टी है उसमें चले they जाएं। are happy and jolly and gay, वहां पे बहुत सारे लोग बहुत ही खुश और आनंदित रहते हैं वहां पर। and they don't think about death, they don't think about God at all. तो वो मरण के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। They are just eating and drinking and think that they're going to live for 100 years. तो वो खाते हैं पीते हैं और ये सोचते हैं कि वो 100 साल तक जीवित रहेंगे। There is a happy birthday song they sing, "May you live to be 103." तो एक जन्मदिन का गीत है जिसमें गीत गाते हैं कि आप 103 साल वर्ष तक जिए। Show about on your birthday. तो आपके जो भी जन्मदिन है उसमें आप दिखाइए। This is the nature of the unbelievers. तो ये जो स्वभाव है अविश्वासियों का स्वभाव है। They are on their way to hell. तो वो उनके नरक में जाने के उस मार्ग पर है। There are many believers who are copying their own lifestyle, the unbelievers' lifestyle. तो बहुत सारे विश्वासी हैं जो अविश्वासियों का जो जीवन शैली का नकल करते हैं। But even if we want to celebrate a birthday, keep God first in your life.
अगर आप अपना जन्मदिन मनाना भी चाहते हैं, तो भी आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखिए। Use it an opportunity to encourage one another. आप एक मौके को ये देखिए कि आप एक-दूसरे को प्रोत्साहित कर पाएँ। I heard of one godly believer. तो मैं अच्छे एक विश्वासी के बारे में सुना। He said, "See, today is my birthday. Doesn't mean I'm become very special today. तो उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्म दिवस तो है, परंतु ये मेरे लिए कुछ खास नहीं मुझे बता बनाता है। Tomorrow is just the same." कल भी इसी तरह की साधारण दिन है। But he said, if we want to celebrate our birthday, let us gather together and encourage one another and sing the songs of God. तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है, तो हम एक-दूसरे इकट्ठा हो जाएँगे, एक-दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे और परमेश्वर की स्तुति गाएँगे, धन्यवाद देंगे। In most birthdays and weddings, they just forget God. तो बहुत सारे जन्मदिनों में और जितने भी विवाह होते हैं, उस दिन में परमेश्वर को सभी लोग भूल जाते हैं। I've seen recently in many of the believers' weddings also, they are singing Bollywood songs and dancing. तो हाल ही में भी मैंने बहुत सारे विश्वासियों के शादी में भी देखा है कि वो लोग जो है बॉलीवुड के जितने भी गीत जो है वो लगाते हैं और नाचते हैं उस पर। Just so very, very shamelessly, just like the people who are dancing before the golden calf in the time of Moses. बिना शर्म के साथ जैसे ही वो जो सोने का बछड़ा था उसके सामने मूसा के दिनों में जैसे लोग नाच गा रहे थे वैसे। And verse 10 says, humble yourselves in the presence of God and he will exalt you. 10वां वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। It says, humble ourselves with Lord, you are great and I'm a sinner. You please help me and I will humble myself and do what you want me to do. That is humbling ourselves. तो अपने आप को दीन करने का अर्थ है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप बहुत ही महान हो, आप मेरे जीवन में जो करना चाहते हो मैं वही करूँगा। ऐसे अपने आप को नम्र करना है हमें। As we sang the song that मेरे मर्जी पर मैं अभी तक चला, Lord अभी तक मैं आपके मर्जी से मैं चलूंगा. जैसे इस गीत को हम गाते हैं, And then what will happen? He will exalt us. तो उसके बाद क्या होगा? वो हमें शिरोमणि बनाएँगे। How does God exalt us? तो परमेश्वर हमें कैसे ऊँचा उठाते हैं? He fills us with the Holy Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं He takes us to heaven and we have fellowship with Jesus Christ. और हमें स्वर्ग की ओर लेके जाते हैं और यीशु मसीह के साथ एक संगति में हम होते हैं। Instead of appreciating the things of this world, we appreciate the things of heaven more and godly people more. तो इस संसार के विषयों के ऊपर ज़्यादा सराहने की बजाय हम परमेश्वर की और परमेश्वर की जनों के जितने भी कार्य हैं उसको ज़्यादा सराहेंगे। And the things of the earth become very unimportant to us. और इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं ठहरेंगी फिर। For most believers, the things of the earth are very, very important. बहुत सारे विश्वासियों के लिए दुनिया की जितनी भी बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। They think about it more and lot of time they spend on that. तो बहुत बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत समय उसके ऊपर बिता देते हैं वो। They have no very less time to think about God. उनके पास बहुत ही कम समय होता है परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए। Lot of time we think about politics, बहुत सारा समय राजनीति के बारे में सोचते हैं वो। useless gossip, अभी निकम्मी जो गपशप के बारे में a lot of talk about food. और बहुत सारे खाने के विषयों के ऊपर बातचीत। But once we are in the Holy Spirit, then we talk about how to please God in all the different actions, how to do good here, how to do good there, and the Holy Spirit will encourage us. और जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम हमेशा सोचेंगे कि कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया जाए, कैसे भले कामों को करें और ऐसे ही कैसे पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमें प्रोत्साहन देते जाते हैं। As it says in Colossians, we are seated in the heavenly places in Christ. जैसे कोलोसियों में लिखा हुआ है कि हम मसीह के साथ ऊंचे स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए जाते हैं। We are not going to be seated, but we are seated. हम वहां बिठाए जाने वाले नहीं हैं, परंतु पहले से हम बैठे हुए हैं वहां। I am seated in the heavenly place. I have fellowship with the Lord, and that is that I'm living in heaven. तो मुझे परमेश्वर के साथ संगति है, इसलिए मैं परमेश्वर के साथ जीता हूँ, मैं उस स्वर्ग में जी रहा हूँ। That is when I've repented from all my sin. Every sin that I've known, I should repent and turn away. तो जितने भी पाप जो है जो मुझे पता है उससे मुझे पश्चाताप करना है, उसमें से पीछे मुड़ जाना है मुझे। And don't give an excuse for sin, then say I'm weak and I'm this and that. कोई भी बहाना कोई भी पाप के लिए नहीं दीजिए कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, ये वो कुछ भी ना दीजिए। Don't say that, Lord, I'm a very stubborn and a proud person. I just want to do my own thing. That is why I have not received the Holy Spirit. तो परमेश्वर को कहिए कि प्रभु मैं बहुत जिद्दी हूँ, घमंडी हूँ, सिर्फ अपनी ही मर्जी करना चाहता था, इसलिए परमेश्वर की मर्जी नहीं की। ऐसे अपने आप का अंगीकार कीजिए। Lord, I'm going to listen to you, the leading of the Holy Spirit. Now I'm going to obey you. परमेश्वर आपकी मैं सुनूंगा, अभी पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनूंगा और आपकी बातों को मैं मानूंगा अभी। This is the meaning of humbling ourselves.
इसी का अर्थ है कि अपने आप को दीन करना। Amen. So let us pray, brothers and sisters. The time is up. Heavenly Father, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि समय की आपका जीवन, we want your life, Lord, and fill us with thy Holy Spirit. Give us true repentance. हमको सच्चा पश्चाताप हमारे दिल में दे प्रभु जी, ताकि आप हम आपके साथ चले. We can walk with you, Lord, and we can hear your voice speaking to us. Thank you, Lord. You love to speak to us, Lord, but we are so stubborn and we do want to do what we like. Lord, help us to turn away from our stubborn ways and our all evil ways, Lord, and help us to have fellowship with you, Lord. How you love us so much, Lord. We want to be filled with the Holy Spirit and will be filled with abundance of joy and peace and the love of God in our own life. Thank you, Father. We worship you. We praise you, Lord. Hallelujah, Lord. We worship you that it can be a permanent experience every day of our life, Lord. Thank you, Lord. You came to give us life and give it all in abundance, eternal life. Lord, we want to seek it after more and more, Lord. आपके पीछे हमको ये स्वर्गीय जीवन हम चाहते हैं प्रभु जी. सभियों को आशीष दे, Lord. Each one of us, Lord, help us to cling to you, Lord, in our personal life, and then you will have heaven over our souls. Hallelujah, Lord. We worship you. We praise you. Bless us, Heavenly Father, we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं. आमीन. तो मीटिंग पूरा हो गया है. ज्यादा टाइम नहीं था. नेक्स्ट टाइम कल शेयरिंग का मीटिंग भी होगा. कल गुरुवार का होगा. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू. बाइबल पढ़िए और प्रभु के साथ चलिए. थैंक यू ब्रदर्स. Thank you, brothers and sisters. Thank you, brothers and sisters.